Hello everyone. Now again welcome in video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is government initiative of educational projection. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ सरकार द्वारा शैक्षणिक प्रक्षेपण के लिए की गई पहल के बारे में या कुछ जो उनकी योजनाएं हैं जिससे शैक्षणिक प्रक्षेपण को या शैक्षणिक प्रावधान को अत्यधिक मात्रा में बढ़ाया जा सके उसके बारे में। यह एमएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत स्पेशलाइजेशन पेपर दैट इज सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि 9B में यह पेपर है और यह टॉपिक यूनिट 1 में है इस पेपर में। इसके पूर्व के वीडियो में एजुकेशन यानी शैक्षणिक जो प्रक्षेपण है एजुकेशनल जो प्रोजेक्शन है उसके बारे में विस्तार से मैं बात कर चुका हूँ। जब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की बात होती है यानी सरकार की क्या पहल है तो एचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा और साक्षरता विभाग इसके संबंध में विभिन्न तरह की नई योजनाओं जिससे कि अत्यधिक मात्रा में छात्रों का नामांकन हो। हायर एजुकेशन में तरह तरह की स्कीम जिसमें कि मॉक मैसिव ऑनलाइन क्लासेस सबसे महत्वपूर्ण है, ई विद्या, मनोदर्पण, ई पाठशाला या इस तरह की योजनाएं जिसमें कि वोकेशनल या कुछ ऐसी डिग्रियां डिप्लोमा प्रदान करना जिससे कि छात्रों की गुणवत्ता क्वालिटी बढ़ सके, इस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है 2010 से लेकर 2021 तक या 2030 तक बहुत तक बजट में भी ये प्रोविजन किए गए हैं कि कैसे अधिक से अधिक मात्रा में छात्रों का नामांकन हो, छात्र जो अधिक से अधिक मात्रा में इसमें जुड़े और अपनी गुणवत्ता अपनी क्वालिटी को दिखाएं। शिक्षक नए टेक्निक नए प्रौद्योगिकी को प्रयोग करके अपनी कार्य क्षमता को दिखाकर छात्रों को अधिक से अधिक मात्रा में जोड़े, इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है। मैं अब इन सभी चीज़ों को भी जो सरकार की पहल है कुछ योजनाएं हैं 10 उनकी कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है उसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class MAd semester 3 paper 9B secondary and higher secondary education. Educational projection that is when government initiative. First I will describe in English. Some of the other major initiative taken by the government are: number 1, in May 2020 government launched PM E-Vidya, a program for multi-mode access to digital online education. Number 2, other initiatives to be launched include Manodarpan, new national curriculum and pedagogical framework, national foundational literacy and numeracy mission. Number 3, under Union Budget 2020-21, government proposed apprenticeship embedded degree diploma courses by March 2021 in about 150 higher educational institutions. Number 4, as on February 2020, 254897 training center were registered in India and around 2 crore candidates completed training under the Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan. Number 5, government promoted new scheme study in India to bring foreign students to higher educational institutions. Number 6, in order to boost the Skill India mission, 2 new schemes, skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion अर्थात संकल्प and skill strengthening for industrial value enhancement strive have been approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA, Government of India, with an outlay of rupees 6655 crore US dollars 1.02 billion and will be supported by the World Bank. Number 7,
The Ek Bharat Shresth Bharat EBSB campaign is undertaken by the Ministry of Human Resource Development to increase engagement between states, union territories, central ministries, educational institutions and general public. Now number 8, various government initiatives are being adopted to boost the growth of distance education market besides focusing on new education techniques such as e-learning and m-learning. Number 9, the Government of India has taken several steps including opening of IITs and IIM in new location as well as allocating educational grant for research scholar in most government institutions. And number 10, that is the last, furthermore, with online mode of education being used by several educational organizations, the higher education sector in India is set for major change and develop in the years to come. अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। शैक्षिक प्रक्षेपण के अंतर्गत सरकारी पहल, सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल। नंबर 1, मई 2020 में सरकार ने PM ई विद्या डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी मोड एक्सेस के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। नंबर 2, लॉन्च की जाने वाली अन्य पहलों में मनोदर्पण, न्यू एजुकेशन, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन शामिल है। चाहे तो इसे हिंदी में भी मेंशन कर सकते हैं। नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पेडागोजिकल यानी विषय वस्तु फ्रेमवर्क जिसको कि प्रारूप कहा जाता है, और नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी दैट मीन्स राष्ट्रीय जो बुनियादी स्तर की साक्षरता एवं संख्यात्मक जो मिशन है वो भी शामिल है। केंद्रीय बजट 2020-21 में लगभग 120 उच्च शिक्षण संस्थानों में मार्च 2021 तक सरकार ने अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री यानी अप्रेंटिस से संबंधित जो डिग्री हो या डिप्लोमा हो पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए। नंबर 4, फरवरी 2020 को भारत ने 1254897 प्रशिक्षण केंद्र पंजीकृत किए थे और लगभग 2 करोड़ उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान के तहत प्रशिक्षण पूरा किया। नंबर 5, विदेशी छात्रों को इस शिक्षण संस्थानों के लिए सरकार ने नई योजना स्टडी इन इंडिया को बढ़ावा दिया। नंबर 6, स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं स्किल एक्विजिशन यानी कौशल अधिग्रहण और नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन यानी संकल्प और औद्योगिक मूल्य संवर्धन स्ट्राइव के लिए कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA को 6655 करोड़ $, 1.02 बिलियन के परिव्यय के साथ कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया और विश्व बैंक द्वारा समर्थित भी किया जाएगा। नंबर 7, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों और आम जनता के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिए किया जाता है। नंबर 8, नई शिक्षा तकनीकों जैसे ई-लर्निंग और एम-लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूरस्थ शिक्षा बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी पहल को अपनाया जा रहा है। नंबर 9, भारत सरकार ने IIT और IIM के नए स्थानों पर खुलने के साथ साथ अधिकांश सरकारी संस्थानों में अनुसंधान विद्वानों के लिए शैक्षिक अनुदान आवंटित करने सहित कई कदम उठाए हैं। नंबर 10, इसके अलावा कई शैक्षणिक संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शिक्षा के ऑनलाइन मोड के साथ भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र आने वाले वर्षों में बड़े बदलाव और विकास के लिए निर्धारित हैं। मैंने इसे स्पष्ट किया। On the basis of above government initiative, especially taken by the government of India, that is most important and vital, especially for the development of the pattern of educational projection. भारत सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं और जो आगे की योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं निश्चित ही फलदायी हैं और उपयोगी हैं, और खासकर शैक्षणिक प्रक्षेपण या शैक्षणिक प्रावधान के अंतर्गत जो प्रोविजन किए गए हैं उसमें ये निश्चित ही लाभकारी होंगे, फायदेमंद होंगे। आवश्यकता इस चीज़ की है कि ये जो ई-लर्निंग है या नए स्थानों पर IIT या IIM है जिसमें कि जो छात्र
अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को भारत में दिखा पाते हैं। अगर इस तरह की चीज़ों को जोड़ा जाएगा तो कुछ रूरल एरिया के भी या सेमी रूरल एरिया के भी छात्र इससे जुड़ पाएंगे, अपनी क्षमता, अपनी कौशल, अपनी क्षमता और अपने विकास को दिखा पाएंगे और भारत के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा जो ग्रामीण के अंतर्गत जो मिशन योजनाएं जो चालू की गई हैं वो भी फलदायी हैं, महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि मैंने बताया कि उसके तहत कितने छात्रों को जो है ट्रेंड किया गया, कितने को डिग्रियां दी गई। अप्रेंटिसशिप महत्वपूर्ण है, उससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होता है और अत्यधिक मात्रा में छात्रों को जोड़कर क्वालिटी और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा आधार है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि शैक्षणिक पहल के तहत अत्यधिक मात्रा में छात्रों को जोड़ा जाए, उनका नामांकन कराया जाए, उनकी जो कौशल है उसके अंदर में जो हिडन, जो छुपी हुई प्रतिभा है उसे बाहर निकाला जाए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल, बिकॉज जो पर्टिकुलर स्टूडेंट, जो छात्र हैं, उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन, दैट मीन्स गाइडेंस की आवश्यकता होती है। उस गाइडेंस के आधार पर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से यूनिट 1 का जो टॉपिक था उसे मैंने समाप्त किया। अगले क्लास से मैं यूनिट 3 जो कि 9B का टॉपिक है, यूनिट 3 में मैं स्टार्ट करने जाऊंगा, जो कि नया टॉपिक होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।